So the basic structure of a neuron, and that's a biological neuron I'm talking about, that is the basic unit of your nervous system. You must have studied that in biology, but let me just draw the basic structure of a neuron, and it's something like this, which has called which has some structure, a tree-like structure on one side, and this is what you call as the okay. I'll just try to. Unfortunately, I can't really increase the size of this. I'll just try to see if that's possible. But I'll try to write big so that you can actually see this. So this tree-like structure here is what you call as the dendritic tree, or it's called the dendrites, right? So this is called the dendrite. And then you have this part, which is called the cell body, or it's also known as soma. And then on the other side, you have a very long sort of a channel. And on the other side of this channel, you have the final end of the neuron. And this part here is what you call as axon, right? And here, this is the ending side of a neuron. And after that, there is a gap here. And this gap, which is here, where you see these dots, this gap here is called the synaptic gap. And on the other side, you have got the dendrites of another neuron. Okay, so this is how one neuron actually connects to another neuron. And these neurons are not like physically connected. In fact, there is a gap. And as I told you, this gap is what you call as synaptic gap, right? So the receiver end of a neuron is the dendrite side. So from the dendrite side, there are some signals, or some sort of what you can say is signals that come from other neurons, or from some sort of an action that a human takes. That though, for example, if you touch something hot, you'll basically get that feeling of a hot surface, and that feeling is because of these signals that transfer from your skin through the dendritic tree, and then through the cell body, and then they pass on to the second neuron, or the connected neuron, by passing through the synaptic gap that you have here. Okay, so the receiving end of information is dendritic end, and the transmission end to another neuron is this synaptic end that you have got here. And then in between the dendritic tree and the synaptic end, you have got these two parts, which are called the cell body and the axon. The purpose of the cell body is primarily to aggregate the information that comes from this dendritic tree. And this dendritic tree is not just connected to one neuron, it may be connected to say hundreds and thousands of other neurons also. So the information from all the other neurons come into this dendritic tree,
and then it passes on to the cell body, and then to axon, and then to the synaptic, and then through the synaptic gap it passes on to the dendroid of the other neuron. Okay, so what happens in case of the cell body is that it actually uh, uh, it actually aggregates all the information that is coming through the different dendrites. Okay, so what happens in case of in the cell body is, so these are the things that are happening in cell body. Number one, aggregation takes place, right? Aggregation means the combination of various signals that are coming through the various dendritic parts of the cell. So that aggregation takes place. And second, the decision has to be made whether this information has to be passed through the synaptic gap to the other neuron or not. So at times, the signal at times the signal does not pass on to the other neurons, right? It remains within the neuron, and that depends upon the strength of the signal, right? So the strength of the signal is primarily something that you should that the neuron has to calculate. If the strength of the aggregated signal is lower than a given threshold, then the signal is not passed on to the other neurons, and that is when we call that the cell or the neuron is inhibiting. It's in the inhibitory state. Inhibition means that no signal is being passed on to the other neurons. And then the other state is what you call as the excitatory state, where the signal is passed on to the other neuron. So ये जो synaptic gap से signal ने pass on होना है to the dendroid of the other, that signal is only passed if the aggregated strength of the signal that is coming in is above a particular threshold. ठीक है. सो प्राइमरली यहाँ पे एक न्यूरॉन के अंदर अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर प्राइमरली यहाँ पे दो तीन चीजें हो रही, इनफैक्ट तीन चीजों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, द इनपुट्स आर बीइंग gathered. Number two, the aggregation is being done. And number three, thresholding is being done. Some sort of thresholding is being done. और उस thresholding की बुनियाद के ऊपर we'll say that whether a neuron will fire or it will not fire. When we say it will fire, it means that it will transfer the signal to the second neuron. और जब हम ये कहते हैं कि it will not fire, this would mean that it will not transfer the signal to the neighboring neurons. तो ये तीन primarily चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और इन्हीं तीन चीजों को देखते हुए mathematically these three things have been defined or in the form of an artificial neuron. So artificial neuron is nothing else other than, so this is what you call as the artificial neuron. So artificial neuron is nothing else other than the aggregation of these three things, or the combination of these three things. So what is happening here? Some inputs are coming in. So let's say the first input is x1 और एक और input आ रही है which is called the x2. फिर this is what is happening inside the neuron. Okay, some sort of aggregation is being done, which is represented by the summation here. Then after the summation, some sort of thresholding is done, and that thresholding is mathematically represented by applying some sort of a function. And then finally you get the output, and we say that okay, this is the output that you get at the other end. So output आपके पास आ जाती है. अच्छा, अब इसमें एक चीज और है इस, और वो ये है कि x1 and x2 are two inputs that are coming in, and both of these inputs may be very important, both of these inputs may not be very important, one of these inputs may be important compared to another input. So the importance of input
For example, if you are visualizing something and you are feeling something with hand, both of these inputs may not be of equal weightage. I mean, you might give more weightage to what you are seeing. तो उसमें उसका जो इनपुट का वेटेज है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू समथिंग यू आर टचिंग. ठीक है, तो कुछ इनपुट्स की जो है वो इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, कुछ इनपुट्स की इंपॉर्टेंस कम होगी, एंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वेट्स. ठीक है, एंड दैट्स आल्सो कमिंग फ्रॉम the biological side. So each input has some weights, so we call these weights as W1 and W2, right? So the aggregation that is taking place here, that is the weighted aggregation. Weighted aggregation means that the inputs are multiplied with their weights, with their importance. If they are equally important, तो दोनों के weights जो हैं वो let's say 0.5 हो सकते हैं, या दोनों के weights 1 हो सकते हैं. If one is important and the other one is not important, तो एक का weight let's say 0.9 हो जाएगा, दूसरे का weight let's say 0.3 हो जाएगा या 0.2 हो जाएगा. इसमें ये जरूरी नहीं है कि the summation of all the weights should be equal to 1. It's not like probability. ठीक है, हाँ, अगर आप वेट्स को नॉर्मलाइज कर दें तो फिर ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होती है. बट लेट्स कीप इट सिंपल. तो आपके पास कोई इनपुट्स आती हैं, आप उनको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, और एग्रीगेट करने के बाद यू अप्लाई सम थ्रेशोल्ड, और ये थ्रेशोल्ड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन हियर. और ये फंक्शन जो है दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट यू अप्लाइड. जनरली ये फंक्शन जो आप अप्लाई करते हैं दैट इज अ स्टेप फंक्शन. और स्टेप फंक्शन का मतलब ये है कि इफ यू हैव लेट्स से दिस सॉर्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन हियर, यहाँ पे यू से कि जी अच्छा इसकी आउटपुट जो है ये 1 होगी या 0 होगी. 0 मतलब कि द न्यूरॉन इज नॉट फायरिंग, दैट मीन्स कि वो एग्रीगेटेड इनपुट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको ट्रांसमिट किया जाए टू द अदर न्यूरॉन. और या उसकी आउटपुट 1 होगी. आउटपुट 1 का मतलब ये है कि द न्यूरॉन इज इन द फायरिंग स्टेट और एक्साइटरी स्टेट में. दैट मीन्स कि नाउ it would pass on the information to the other neuron. So neuron की जो output है इस केस के अंदर that would be either 0 और 1. ठीक है, तो बाइनरी टर्म्स में हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड न्यूरॉन्स हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, जो वो या फायर होते हैं या फायर नहीं होते. तो इस केस में फायरिंग स्टेट हम उसको 1 कह देते हैं और नॉन फायरिंग स्टेट को हम उसको 0 कह देते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस आपकी एग्रीगेटेड इनपुट होगी. ठीक है, सो दिस वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ योर इनपुट विद रिस्पेक्ट टू सम वेट्स. ठीक है, एग्रीगेटेड ऑफ इनपुट्स आपके पास आ जाएगी. और अगर ये एग्रीगेशन अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट जो कि इस थ्रेशोल्ड के तौर पे एक्ट कर रहा है. ठीक है जी, अगर इस एग्रीगेशन इस पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है, तो न्यूरॉन फायर करेगा, दैट मीन्स उसकी कोई आउटपुट आएगी, अदरवाइज न्यूरॉन विल नॉट फायर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. ठीक है, अच्छा, और ये जो थ्रेशोल्ड है, यानी इस स्टेप फंक्शन की जो पोजीशनिंग है, द पोजीशनिंग ऑफ दिस थ्रेशोल्ड depends upon I mean it varies from case to case. कि कुछ केसेस में ये थ्रेशोल्ड जो है वो 0 के करीब होगा, कुछ केसेस में ये 0 से दूर होगा, कुछ केसेस में हो सकता है ये नेगेटिव साइड पे भी चला जाए. तो दिस इज समथिंग which has to be determined. अच्छा, the threshold is applied not on a single input. In fact, it's applied on the aggregated inputs. That means कि आप तमाम inputs का weighted sum लेंगे, और वो जो sum आएगा उसके ऊपर threshold आपने apply करना है. Individual input के ऊपर threshold apply नहीं होगा. That is something which you have to keep in mind. ठीक है, and this is the basic principle. अब question ये है कि ये जो aggregated input है, this aggregated input which I have got here, इसको I can represent it in the form of a vector. ठीक है, वेक्टर्स की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. फर्ज करें W एक वेक्टर है और X एक वेक्टर है. W वेक्टर जो है अच्छा, W एक वेक्टर जो है दैट इज अ वेक्टर ऑफ ऑल द वेट्स. सो लेट्स से कि मेरे पास W1 और W2
एक रो वेक्टर है, और अगर इसकी मैं प्रोडक्ट ले लूं इनपुट वेक्टर के साथ विच इज अ कॉलम वेक्टर, if I take get the product of these two which is in fact called a dot product, तो इनकी मैं डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूं तो दैट विल रिप्रेजेंट दिस एग्रीगेशन पार्ट, ठीक है। तो ये समेशन वाला जो पार्ट है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स कि अगर मैं इसको प्रिसाइसली और बड़े कंसाइसली रिप्रेजेंट करूं तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज W ट्रांसपोज इनटू X, वेयर W is the column vector of weights and X is a column vector of the inputs, और so और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपने लेना है तो आपको W का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो W ट्रांसपोज X ये वेक्टर फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है, और ये जो ऊपर दिया हुआ है दिस वन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल समेशन। सो दीज आर एनालॉगस टू ईच अदर, ठीक है, या उस तरह रिप्रेजेंट कर लें, इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लें। और अगर मैं सिंपल टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, तो आई कैन राइट डाउन इफ y इज माय आउटपुट, तो y विल बी primarily W1 X1 प्लस W2 X2, और इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया विच इज द स्टेप फंक्शन जो मैंने अप्लाई किया। अभी जो मैंने आपको दिखाया दिस इज अ स्टेप फंक्शन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है। आप हार्ड थ्रेशोल्ड अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि आपका थ्रेशोल्ड किसी एक पॉइंट के ऊपर आता है, उससे थोड़ा सा कम होगा तो द आउटपुट विल बी 0, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो द आउटपुट विल बी 1। This is what you call as the hard threshold. Generally hard thresholds आप न्यूरॉन्स के अंदर यूज नहीं करते आजकल। what you do is that you apply some sort of a soft threshold, और soft threshold का मतलब ये होता है कि इस step function को आप convert कर दें into some sort of a continuous function, ठीक है। और continuous function में you can have a function which is also called a sigmoid function। इस तरह का आप एक continuous function भी define कर सकते हैं जिसमें आपके पास एक hard threshold नहीं आता, but एक आपके पास soft thresholds आते हैं। That would mean कि इस point से पहले आपके पास neuron will not fire, और उसके बाद the neuron would gradually fire, that means कि gradually it would improve or it would increase its output, and ultimately at this point यहाँ पे जाके उसकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। आप इस तरह का थ्रेशोल्ड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड अ सॉफ्ट थ्रेशोल्ड फंक्शन, और आप इस तरह का थ्रेशोल्ड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड हार्ड थ्रेशोल्ड फंक्शन। और ये कब आप यूज करते हैं वील सी इन अ व्हाइल। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाइनरी कैटेगराइजेशन की प्रॉब्लम है जिसमें आपको आउटपुट 0 और 1 की फॉर्म में चाहिए, तो आप इस तरह का फंक्शन यूज करेंगे हार्ड थ्रेशोल्ड। और अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस आउटपुट चाहिए तो आप इस तरह का सॉफ्ट फंक्शन सॉफ्ट व्हाट यू कैन से सॉफ्ट थ्रेशोल्ड फंक्शन आप यूज करेंगे, ठीक है जी। ओके, so the aggregation, just the last point here, the aggregation that is taking place here, this aggregation is primarily based upon a single value, ठीक है। so aggregated value कोई होगी, और उस aggregated value and it's a single value, it's generally not a range, ठीक है। तो एक single value के ऊपर आता है। तो step function के अंदर यहाँ पे आप देखें एक single value के ऊपर या उससे कम होगी या ज्यादा होगी, तो इसी वजह से आपकी आउटपुट 0 या 1 होगी। अच्छा, so the question is that what happens between 0 and 1 in soft threshold functions? Half of the signal is transmitted but half isn't. अच्छा, 0-1 threshold का मतलब soft function में ये है कि primarily वो 1 तक जाते हुए immediately 1 पे वो jump नहीं करेगा, but it would gradually jump to 1. So excitatory mode जो है वो 0 और 1 नहीं होगा, excitatory mode could have intermediate states. That what this soft hard means. कि न्यूरॉन वुड ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स, द सिग्नल वुड ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, और अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है तो फिर वो 1 पे जाएगा। अदरवाइज न्यूरॉन की जो फायरिंग स्ट्रेंथ है वो 0.3 भी हो सकती है। दैट मीन्स कि द सिग्नल इज मोर क्लोजर टू द वीक पार्ट रादर देन टू द
strong part. So complete excitatory mode में जाने से पहले there are some intermediate states that the artificial neuron or the neuron has to pass through. ये है इसका soft threshold का मतलब. ठीक है जी. अच्छा, how do you transform that? Okay, the transformation is primarily due to a mathematical function. आपने ये जो f function apply किया है ना, आप ये f function ये यूज कर सकते हैं, और जब आप ये यूज करते हैं स्टेप फंक्शन, so let me just write it down. You will say this is what you will say. आपने f को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. f को इम्प्लीमेंट जैसे करेंगे वो आपका सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है. तो हार्ड जो आपके पास फंक्शन है दैट वुड बी ऑफ दिस फॉर्म. सो योर आउटपुट इज 0 इफ wtx is less than some threshold, and we'll say that less than some value, and let's call that value as p. So अगर वो p से कम है तो फिर 0 होगा, और otherwise 1 होगा. ठीक है. So this is your step function, and your soft function, which is the sigmoid function. That sigmoid function is primarily represented as 1 over 1 plus e to the power minus, और यहाँ पे आपके पास जो weighted input है वो ये आ जाएगी यहाँ पे. So अगर आप ये function implement कर देंगे तो soft हो जाएगा, और अगर आप ये function implement करेंगे तो वो hard हो जाएगा. ठीक है. So you don't transform this to this, you actually replace this with this. और ये replacement आप कब करते हैं? As I told you, if you have a problem that is continuous in nature, जिसमें continuous values आ रही हैं between 0 and 1, या between any two particular between a particular range, तो आपको 0 और 1 नहीं चाहिए. बाइनरी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम है, तो आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज करेंगे. अदरवाइज यू विल यूज अ हार्ड फंक्शन. अच्छा, एक्चुअली एक क्वेश्चन जो आया वो ये है कि आप सॉफ्ट थ्रेशोल्ड क्यों यूज करते हैं जब बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हैं वो हार्ड फंक्शंस यूज करते हैं. इनफैक्ट एक चीज इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं एक्चुअली वी आर नॉट वेरी क्लियर कि वो कैसे काम करते हैं. ठीक है. इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन कि ये हार्ड थ्रेशोल्ड के तौर पे काम करते हैं. इनफैक्ट द कंप्लीट वर्किंग इज नॉट वेरी वेरी क्लियर. ठीक है. सो that's an assumption, or that's a sort of what you can say an approximation of how a biological neuron actually works. ठीक है. Again, as I told you, this is the motivational part. Like in most of the time when you are using hard threshold, तो आप continuous problems को solve नहीं कर सकते. So that you can say that this is primarily an extension of this concept. ठीक है. And that extension has been applied. Actually, वो किस तरह से काम कर रहा है? Researchers say that it's more closer to hard thresholding, but there are millions of neurons and there are many types of neurons, and we don't really know that how all the neurons actually work. ये जो example मैंने अभी आपको दिया है, that is just one type of neuron जिसकी हम बात कर रहे हैं. You cannot actually generalize it. ठीक है. So because you can process continuous input also, humans, therefore the approximation from hard threshold to soft threshold is also a valid step. So it actually works. So therefore it may or may not be related to the actual working of a neuron. So the motivation comes from there, लेकिन उसके अंदर जो आप extensions कर रहे हैं, those extensions are depending upon the type of applications which you are trying to solve. Okay, फिर एक let me just answer some of the questions जो कि आए हैं. Summation is for input coming at the same time. जी, summation time delayed इसमें नहीं है. टाइम डिलेड अगर आप करेंगे दैट मीन्स कि अगर आप उसमें टेम्पोरल इम्पैक्ट भी डालेंगे तो आप एग्रीगेशन ओवर टाइम भी कर सकते हैं. लेकिन अभी जो हमने सिंपल न्यूरॉन की बात की है, दैट सिंपल न्यूरॉन की जो वर्किंग है दैट इज फॉर instantaneous input that is coming on in inputs that are coming at the same time. आप उसमें टाइम डिले भी डाल सकते हैं if you want. ठीक है.
तो टाइम इंटरवल के लिए अगर आप एग्रीगेट कर लें दैट इज आल्सो फाइन। आप कुछ देर के लिए रीडिंग्स लेते रहें और उसके बाद आप एक दफ़ा एग्रीगेट कर लें ओवर अ टाइम इंटरवल, दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। ठीक है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जी एग्रीगेशन ओवर टाइम नहीं कर रहे। वी आर सेइंग दैट देयर दोज इनपुट्स आर कमिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, सो I'll just show you an example in a while of hard thresholding, और आप उसी को आप soft thresholding में उसी example को use कर सकते हैं। I'll just show you an example in a while कि ये कैसे होता है। Right, अच्छा, continuous problem का मतलब एक I mean just to distinguish कि हार्ड थ्रेशोल्डिंग आप कब करेंगे। लेट्स से कि आपने ये कैटेगराइज करना है कि एक स्टूडेंट जो है वो डीन्स ऑन लिस्ट पे है या नहीं। आई मीन देयर इज नो कंटिन्यूटी है। आपकी आउटपुट 0 1 होगी। 0 उस सूरत में होगी व्हेन द स्टूडेंट इज नॉट ऑन द डीन्स ऑनर लिस्ट, और 1 उस वक्त होगी व्हेन द स्टूडेंट इज ऑन द डीन्स ऑनर लिस्ट। इसमें आपको हार्ड थ्रेशोल्डिंग करने की जरूरत है, आपको सिगमॉइडल थ्रेशोल्डिंग करने की शायद जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सॉफ्ट थ्रेशोल्डिंग इस केस में भी करना चाहते हैं तो देन योर थ्रेशोल्ड पॉइंट वुड बी 0.5। सो आप ये कहेंगे जी 0.5 थ्रेशोल्ड से ऊपर जो है वो डीन्स ऑनर लिस्ट पे हैं, और 0.5 से कम वाले जो हैं वो उसमें हैं। So coming back to this discussion here, right, so we'll say that okay, at this point, below this point ये सारे के सारे deans honor list पे हैं, और above this point ये सारे के सारे sorry the other way around, ये deans honor list पे हैं और ये नहीं है। ठीक है, तो आप सॉफ्ट थ्रेशोल्डिंग को भी यूज कर सकते हैं बाइनरी में, लेकिन उसमें आपको जो कट ऑफ रखना पड़ेगा ना, वो आपको सिग्मॉइडल फंक्शन का सेंटर पॉइंट रखना पड़ेगा। और सिग्मॉइडल फंक्शन का सेंटर पॉइंट जनरली जो होता है that is 0.5. so if I draw this sigmoidal function it is of this form. so ये जो पॉइंट है आप ये कह सकते हैं कि जी अच्छा, इससे कम अगर आपका थ्रेशोल्ड है that means that if you are falling in this region, तो आप ये कहेंगे ये आप एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, और if you are falling in this region आप कहेंगे आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो डिसीजन पॉइंट है वो ये होगा। ठीक है, वेयर एज अगर आप नॉर्मल हार्ड थ्रेशोल्डिंग इसी की करेंगे तो वो आपके पास स्टेप फंक्शन आ जाएंगे, तो आपके पास ये, तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें आपने दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है तो आप हार्ड थ्रेशोल्डिंग कर लें। अदरवाइज लेट्स से कि अगर आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि किसी की सैलरी कितनी है, तो ये आप एक कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में आप हार्ड थ्रेशोल्डिंग यूज नहीं कर सकते। आप उस सूरत में आप sigmoidal function यूज करेंगे because that would be a sort of continuous thing. So I hope this clarifies a few things. अच्छा, so I hope this is clear. So the basic biological say concept behind this is very clear. अब ये देखना ये है कि ये अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, so how do we actually apply that? और किस तरह से ये फिर आप इसमें लर्निंग किधर से आ गई। ठीक है, इसमें लर्निंग क्या है? लर्निंग इसमें ये है कि if you look at this diagram, I mean this figure there, y is your input output, और उसके बाद आपके पास you have your this equation। ठीक है, और उसके ऊपर आप एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं which is the thresholding function। ठीक है, इसमें आपके पास जो जनरली लर्निंग के अंदर होता क्या है, लर्निंग के अंदर आपके पास डेटा सेट अवेलेबल होता है, और डेटा सेट के अंदर व्हाट इज दैट डेटा सेट, जनरली आपके पास सुपरवाइज्ड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। सुपरवाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास इनपुट आउटपुट पेयर आपके पास अवेलेबल है। आपको पता है कि गिवन x के लिए आपके पास आउटपुट क्या है, तो आप ये कहते हैं कि जी अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो मेरे पास y की वैल्यू 2 है, अगर वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है तो ये 4 है, अगर वैल्यू 3 आ जाती है तो ये यहाँ पे 9 है। सो दिस इज हाउ द डेटा इज नोन टू यू। ठीक है, तो आपके पास ये नोन डेटा है। ठीक है, तो आपके पास इनपुट आउटपुट पेयर्स अवेलेबल, इनपुट आउटपुट पेयर अवेलेबल है। अब आपने करना ये है कि आपने एक इक्वेशन इसमें से निकालनी है, एक मॉडल निकालना है जो कि इस डेटा के पैटर्न को लर्न कर सके कि कब मेरे पास इनपुट क्या आती है और उसके अगेंस्ट मेरे पास आउटपुट क्या आती है। उसको लर्न करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे ये इक्वेशन आपको जो दी हुई है, which is y is equal to the function applied on the aggregated weighted input। अच्छा, इसमें आपके पास अगर आपके पास ये पेयर, आपके पास एक्स वाई पेयर अवेलेबल है, दैट मीन्स कि आपके पास एक्स भी नोन है और वाई भी नोन है, आपके पास ये वैल्यू नोन है और आपके पास वाई की वैल्यू भी नोन है।
ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए आपने एक मॉडल डेवलप करना है। और मॉडल डेवलप करें, अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूं तो मॉडल डेवलप करने के लिए मेरे पास अननोन सिर्फ इसमें वेट्स हैं। ठीक है, तो मैं अपने वेट्स को इस तरीके से डिटरमिन करूंगा कि मेरे पास ये दोनों रिलेशन, इन दोनों की आपस की रिलेशन जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाए। अच्छा, ना सिर्फ मुझे ये डिटरमिन करना है कि वेट्स क्या होंगे, बल्कि ये भी डिटरमिन करना है कि मैंने थ्रेशोल्ड कहाँ पे रखना है। वी आर जस्ट सेट के थ्रेशोल्ड भी आपने डिटरमिन करना है ना, कि एग्रीगेटेड इनपुट एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो फिर आप क्या करेंगे, और एक खास थ्रेशोल्ड से नीचे है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इसमें अगर अननोन आपके पास जो हैं वो वेट्स हैं, और ये जो थ्रेशोल्ड है जो कि आपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, ये दो अननोन है आपके पास। ठीक है, और लर्निंग का मतलब ये है कि गिवन एनी XY relation, you should be able to determine those weights which would find a relationship between X and Y. ठीक है जी, तो X and Y की आपस की रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए आपको वेट्स को डिटरमिन करना है, और वेट्स को डिटरमिन करने के लिए what you'll have to do is that you will have to employ some sort of a learning mechanism. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन में थ्रेशोल्ड निकालने के लिए, थ्रेशोल्डिंग निकालने के लिए आप प्राइमरीली करते ये हैं कि आप और एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, आई मीन दिस कुड बी अप्लाइड टू सिग्मॉइड और हार्ड कोडेड, दोनों फंक्शंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड को इस फॉर्म में डिटरमिन करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को। व्हाट वी डू इज दैट वी ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन into another form, which will become really a very simple representation of this threshold. तो threshold को भी किसी तरह से हमने इस फंक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। और उसका जो आइडिया है वो ये है कि आपके पास, लेट से मेरे पास, हम पुरानी एग्जांपल पे जाते हैं, हमारे पास दो इनपुट्स थी, एक x1 इनपुट थी, राइट, और एक मेरे पास x2 इनपुट थी। ठीक है, और उसके बाद इसका एक अपना वेट था W1, इसका एक अपना वेट था W2। ठीक है जी, और यहाँ पे आके एग्रीगेशन हो रही है, और फिर मेरे पास एक आउटपुट निकल रही है, लेट्स से कि मेरे पास ये आउटपुट Y है, राइट। अब थ्रेशोल्ड को मॉडल करने के लिए व्हाट हैज बीन डन इज कि थ्रेशोल्ड हैज बीन कंसिडर्ड, क्योंकि थ्रेशोल्ड भी एक वैल्यू है ना, थ्रेशोल्ड हैज बीन कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट इनपुट to this structure, और constant input to this structure would mean कि मैं उसको dotted से show कर देता हूँ कि we assume कि there is an input that is coming into this structure. This input would always be x naught, let's call it x naught, और x naught की value जो है, that x naught की value जो है that would always be 1. x naught की value हम हमेशा 1 रखेंगे, और इसका एक weight होगा which will be w naught. ये W naught जो है that would be the weight of this constant input that is coming in, ठीक है, which is called x naught. ठीक है, सो हमने किया ये है कि हमने ये एक एक्स्ट्रा इनपुट इसमें आप डाली है, कांस्टेंट इनपुट डाली है विद वेट W naught, और वो हमने एग्रीगेशन में अब हम यूज कर रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि अब हमारे पास जो y की एक्सप्रेशन बनेगी, y की जो एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, क्योंकि x naught हमेशा 1 है, सो आई कैन ऑलवेज राइट इट एज W naught प्लस W1 x1 प्लस W2 x2, एंड वील से कि इफ इट इज ग्रेटर देन, और वो हम बाद में आते हैं कि ये क्या इसमें यूज होता है, लेकिन दिस वुड बी द न्यू फॉर्म। अच्छा, what is this W naught representing? W naught is in fact representing the threshold that is being determined by this function f. So function f का जो threshold है is being represented by W naught here, and this is also represented as a weight here. तो इसका मतलब ये है कि हमने थ्रेशहोल्ड को भी जैसे बाकी वेट्स लर्न करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रेशहोल्ड को भी हम उसी प्रोसेस के तहत आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है. अच्छा, this expression here, if you look at this expression is very similar to a straight line equation. ठीक है. अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इट डाउन एज W नॉट प्लस द समेशन ऑफ WIXI. ठीक है. और अगर मैं इसको W नॉट प्लस W ट्रांसपोज इंटू एक्स भी कर सकता हूँ. आई जस्ट राइट इट बिगर. तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगी वो ये आएगी W नॉट प्लस x. I mean, if you just look at this expression, you will find it very similar to a straight line equation. Straight line equation क्या होती है? Y is equal to C plus mx. ठीक है. If you remember this terminology, m इसमें क्या है? This is the slope. और y इसमें क्या है? The C इसमें क्या है? This is the intercept. ठीक है. This is the intercept. So if you look at this expression, यहाँ पे this expression would generate a straight line. और ये straight line क्या represent कर रही होगी? इसकी slope क्या represent कर रही होगी? इसकी slope जो है that would be governed by this factor. और ये जो है that will be representing the y-intercept. और y-intercept जो होगा that would be a sort of a threshold. ठीक है. So let's just see कि how would this work out. ठीक है. So why is this happening? So मेरे पास अगर let's say कि मेरे पास ये मेरे पास space है, इसमें जो मेरे पास W transpose है that is representing the slope. That means कि if I put W not equal to 0, let's say मैं W not equal to 0 मैं कर देता हूँ, तो ये जो different equations मेरे पास आ रही हैं या lines मेरे पास आ रही हैं, all these lines are representing various, I mean all these lines are representing primarily this at various values of W's. ठीक है. Various values of W's. ठीक है. जैसे मैं W की वैल्यू चेंज करूंगा मेरी लाइन की स्लोप चेंज हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ठीक है. तो जैसे ही मैं अपनी W की यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरी लाइन की स्लोप चेंज हो जाएगी. ठीक है. और दूसरी तरफ मेरे पास एक फैक्टर है जिसको मैं W नॉट कह रहा हूँ. अच्छा, W नॉट जब मैं चेंज करूंगा तो उस सूरत में इसका इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा. ये लाइंस मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. सो अगर W नॉट, अगर W को मैं फिक्स कर देता हूँ WT को या W को, तो W नॉट को चेंज करने से मेरे पास ये लाइन जो है ये इस डायरेक्शन में इसकी y इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो W नॉट इज कंट्रोलिंग दिस मूवमेंट ऑफ माई लाइन and the weights that are being used to aggregate my input are actually controlling the slope. तो अब ये है कि if I'm changing both of these two things, both of these W's, तो मैं अपनी लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट चेंज कर. So I'm actually drawing a line here. ठीक है जी. अच्छा, let me just respond to some of the questions here. So isn't this an equation for we'll come to this regression line also. So this is also a regression line, लेकिन हम क्योंकि इसको learning के perspective में देख रहे हैं, classification के perspective में देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको regression के तौर पे भी देख सकते हैं. I'll come to that point later on कि regression में और इसमें क्या फर्क आएगा. ठीक है जी. W transpose X is the dot product between weights, and yes, W transpose is the dot product of weights. Yes, you are right. अच्छा, अगर मैं इसको let's say कि इस सारे को अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है जिसमें मैंने उसका थ्रेशोल्ड भी ऐड कर दिया है, इसका जी WT is transpose of. तो इस सारे को मैं I can write it down in a simple expression. तो अब मैं फंक्शन को यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ और instead of writing down this way कि f that y is equal to this, instead of writing this, what I can do is कि मैं I can write w y as
y as this form, जहां पे मेरे पास ये जो w आएगा, this would primarily be a vector w0, w1 and w2, और x का जो वेक्टर मेरे पास आएगा वो आ जाएगा x0, x1 and x2. ठीक है, तो अब मैंने वो थ्रेशोल्ड था, उस थ्रेशोल्ड को मैंने आई मेड इट पार्ट ऑफ माय डॉट प्रोडक्ट. अब मुझे f अलग से उसमें डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो वो थ्रेशोल्ड आ रहा है, वो थ्रेशोल्ड में इसमें मैंने इक्वेशन के अंदर ही ऐड कर दिया. w0 इज एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट थ्रेशोल्ड ऑफ द फंक्शन, राइट. आई होप दिस क्लैरिफाइज. तो अब मेरे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन ये आ जाएगी. यहाँ पे अब मैंने इन वेट्स को लर्न करना है किसी तरीके से, और इन वेट्स को लर्न मैंने करना है. क्यों? क्योंकि मेरे पास मैंने इस इक्वेशन को डिटरमिन करना है, और इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास x और y पेयर मुझे कुछ एग्जांपल्स पता है मुझे. ठीक है, तो फॉर नोन एग्जांपल्स आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दीज वेट्स, एंड देन आई विल टेस्ट these weights which I've determined on some unknown examples, जहां से मुझे अपनी ये जो मॉडल मैंने डेवलप किया है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में स्ट्रेंथ के बारे में या इसकी एक्यूरेसी के बारे में मुझे कुछ पता चले. ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू दिस डिस्कशन के अच्छा, रोशान इज अ क्वेश्चन सेइंग दैट कैन यू explain why or how W0 is the threshold and how you got it. Acha, I have already explained this ke threshold here would represent the threshold of a function is primarily representing the y-intercept. अगर आप step function में भी देखें ना, तो step function के अंदर वो intercept को ही actually represent कर रहा होता है. ठीक है, तो if I just represent that, तो आपके पास एक मेरे पास ये step function है. ठीक है, एक मेरे पास ये स्टेप फंक्शन है, एक मेरे पास ये स्टेप फंक्शन है. इन तीनों में आप देखेंगे कि थ्रेशोल्ड फर्क है. सो दिस इज प्राइमरीली रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरसेप्ट. तो कहाँ पे ये फंक्शन जो है वो कट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, जिसको भी वो आप डिटरमिन कर रहे हैं. तो प्राइमरीली फंक्शन जो W0 है दैट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की टर्म्स में देखता हूँ, तो अगर थ्रेशोल्ड ये मेरे पास आता है तो दिस इज द लाइन. अगर थ्रेशोल्ड 0 है तो दिस इज द लाइन. अगर थ्रेशोल्ड ये है तो दिस इज द लाइन. तो द लाइन दैट आई एम गेटिंग against these different thresholds, they are of the same slope, but they are passing through different coordinates of x and y. ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि W0 जो है वो that is actually representing a threshold. ठीक है, it means dot product. Yes, it actually means the dot product between the weight vector and the input vector. तो वहां से आपको डिटरमिन ये करना है. अब क्वेश्चन ये है, नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, एंड दैट इज कि आपने वेट्स लर्न कैसे करने हैं. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने वेट्स कैसे लर्न करने हैं. वेट्स आर लर्नड थ्रू अ स्पेशल rule that has been developed, and again it may not have anything to do with how the biologically a neuron actually learns, and it is something that has come up through some sort of a mathematical interpretation of how to learn. और वो रिग्रेशन और वो सारी चीज़ों को साथ लेके जो है वो दिस टाइप ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म हैज़ बीन डेवलप्ड. अच्छा, और वो लर्निंग मैकेनिज्म क्या है, that is what we'll be discussing now, and that is what is called the perceptron learning. अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि लेट्स से कि अच्छा, बिफोर वी गो टू द लर्निंग पार्ट, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. और वो एग्जांपल ये है कि ये यूज कहाँ पे होगा. लेट्स से आई हैव गॉट 2 क्लासेस, और एक डॉट्स की क्लास है, ठीक है, और एक मेरे पास क्रॉसेस की क्लास है, और मेरे पास ये एग्जांपल्स मौजूद हैं. और यहाँ पे मेरे पास लेट्स से कि फॉर अ गिवन इनपुट मेरे पास आउटपुट में ये 2 क्लासेस हैं. आउटपुट में मेरे पास या डॉट्स आएंगे या क्रॉसेस आएंगे. दैट मीन या जीरो आएगा या 1 आएगा. ठीक है, तो इस केस में मुझे डिटरमिन ये करना है, एक मॉडल बनाना है जो मुझे ये बताए कि ये कौन सी क्लास है, ये क्रॉस क्लास है या डॉट क्लास.
ठीक है, इसका आसान तरीका ये है कि मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि इन दोनों क्लासेस को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे इफ यू रिमेंबर इन डिसीजन ट्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट्स में लगाता था, ठीक है ना, तो वहां से आप डिटरमिन करते थे ये कौन सी कैटेगरी। तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, और वो लाइन प्रोबेबली ये वाली लाइन होगी जो ये बताएगी कि ये क्लास को, दोनों क्लासेस को आसानी से सेपरेट कर सकती है। तो बिलो दिस लाइन मेरे पास एक क्लास है, अबव दिस लाइन मेरे पास दूसरी क्लास है। अगर ये जो प्रिसेप्ट्रॉन इक्वेशन हमने लिखी है, या जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हमने लिखी है, अगर मैं उन टर्म्स में इसको लिखूं, तो मेरे पास y जो है दैट विल बी w0 प्लस, अगर दो इनपुट्स है मेरे पास, x1 प्लस x2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन है। इसमें मुझे w's का भी पता नहीं है, मैंने w's निकाल लें। लेकिन इससे मैं क्लासिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ? क्लासिफिकेशन में ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ये कहूँ कि अगर ये सारी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, फर्ज करें मेरे पास w's हैं, तो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो ये डॉट्स की क्लास होगी। दैट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ठीक है, एंड इफ इट इज लेस देन 0 तो it would be the class of crosses. That means that I am talking about this region. ठीक है, and if the value of this equation is equal to 0 that means that I am on the line. ठीक है, if I am on the line that means कि I am unable to decide कि ये कौन सी क्लास है। Right, so I hope this is clear कि if I know this value, और अगर इसको मैं डिटरमिन कर लूं and I have got data of this form, I can categorize the two into crosses and dots. अगर लाइन से नीचे है तो इट्स वन क्लास, अगर लाइन से ऊपर है आपके पास वो वैल्यू फॉर अ गिवन इनपुट, फर्ज करें मेरे पास x1 x2 इनपुट्स आती हैं, मेरे पास w's नोन है, मैं x1 x2 इस इक्वेशन में डालता हूँ, वैल्यू y की निकालता हूँ। y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो दैट वुड बी दिस क्लास, अगर लेस देन 0 आती है तो दैट वुड बी दिस क्लास, और अगर इक्वल टू 0 आती है तो दैट वुड बी on the line. That means that I'll not be able to decide this. ठीक है, okay, so let me just respond to some of the questions. और ये है कि हाँ, so जाफिर का क्वेश्चन था कि ये अगर x इंटरसेप्ट है तो y w is the y intercept. I mean it's not really important कि हम x intercept या y intercept की terms में बात करें। Primarily it's an intercept that is representing, and intercept का मतलब ये है कि the point which you need to know here is कि the slope of the line is not governed by this factor w0. ठीक है, it's the positioning of the line, ठीक है, on your x and y. और जब आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, आप वो जो लाइन x एक्सिस को कट करती है और जो y एक्सिस को कट करती है वो एक यूनिक पॉइंट्स है। ठीक है, so a single line would determine that where it cuts the x axis and where it cuts the y axis. ठीक है, तो it's not only the y intercept, it's also at the same time determining the x intercept. ठीक है, सो इवन अगर आप y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट भी अगर लाइन को आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें तो इट वुड कट एट सम पॉइंट ऑन x। ठीक, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्या कहते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट्स एक्चुअली एन इंटरसेप्ट। अच्छा, सो लिंक दिस एग्जांपल विद आवर इनिशियल सेंट और नॉट सेंट सिग्नल एग्जांपल। अच्छा, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है विच इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप ये बताएं कि 0 और 1 के साथ आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस एग्जांपल को यूं कहता हूँ कि इफ सो आई कैन एक्चुअली से कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0 सो द आउटपुट वुड बी 1। ठीक है, so I'll say that okay, anything greater than 0 the output is primarily 1। ठीक है,
or some value. So this would be basically an excitatory state. ठीक है, and I'll say that if it is inhibitory state, जो कि ये, ठीक है, then the neuron will not fire. So in दोनों cases के अंदर the neuron will not fire, you'll not be able to find out anything. ठीक है. So this is how this would relate. So this would relate to the excitatory state of the neuron, and this would be the inhibitory state of the neuron. The last two will be the inhibitory. So just to repeat, this would be the excitatory state where the neuron actually fires, and this would be when the neuron is not firing. Okay, so we'll say that in one case the neuron fires and in the other case the neuron doesn't fire. Like in reality, when we are doing it in mathematical terms, so in both cases you are getting some output. Okay, so this is how it actually relates to that. So ये जो आपके पास आ रहा है, this is that aggregated input that goes to to a biological neuron. Acha ji. So then there is a question. I might have missed some of the questions. Let me just try to answer. Tala saying that why are we using 0 as the value to compare to decide which class it is? अच्छा, क्योंकि it's a straight line, तो straight line का solution जो होता है वो उस वक्त 0 होता है when you are on the straight line. ठीक है. So when your y जब आपका ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 evaluate होता है, तो दैट मीन्स कि आप लाइन के ऊपर, अगर आप लाइन यानी यू आर ऑन द लाइन, ठीक है. सो इफ यू आर अबव द लाइन और बिलो द लाइन, दैट मीन्स दैट द आउटपुट y इज आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इसलिए 0 आ रहा है. दो आप इस थ्रेशोल्ड को, इस 0 को यू कैन ऑल्सो लाइक चेंज दैट इफ यू वांट. ठीक है, आप दोनों साइड्स के ऊपर एक कांस्टेंट ऐड कर दें. आई मीन इफ यू ऐड +1 टू बोथ साइड्स, you will find कि यहाँ पे threshold आपका greater than 1 हो जाए. ठीक है, so that is something which is in your control. You can actually do that. ठीक है, तो 0 इसलिए क्योंकि जो solution of an equation है, the solution of an equation when you are on the line, in that case it would always be equal to 0. ठीक है, तो इसलिए हम zeros की terms में बात कर रहे हैं. Why did we select y greater than 0? Why choose 0? हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि 0 आपने इसलिए उसको चूज किया है क्योंकि इस केस के अंदर अगर कोई पॉइंट, लेट्स से अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाता है, कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाता है, तो उस केस में y की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, इसलिए this has been chosen. अच्छा, then we can only deal with two classes. Yes, at present we can only deal with two classes, and that's what is that's why it's actually perceptron learning. हम एक क्लास के साथ, दो क्लासेस के साथ ही डील कर रहे हैं और सिंगल perceptron की बात हो रही है. तो इसलिए this is something that we are dealing with at present. ठीक है, we can extend it to multi-class problem by doing what? By adding say more lines to this graph. अच्छा, एक न्यूरॉन जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, that is representing one line. अगर मैं दो न्यूरॉन्स को इकट्ठा कर दूंगा तो that would be representing two lines. So that, for example, let's say कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें मेरे पास एक ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है. ठीक है, और मेरे पास एक इनपुट x1 है, एक इनपुट x2 है. ये इनपुट इसे भी जा रही है, ये इनपुट इसे भी जा रही है, ये इसे भी आ रही है और ये इसे भी आ रही है. और इसका w, इसका वेट कोई होगा, लेट्स कॉल इट w, एंड इफ दिस इज न्यूरॉन 1, लेट्स कॉल इट न्यूरॉन 1 एंड लेट्स कॉल इट न्यूरॉन 2. सो ये वेट w11 होगा, ये वेट w12 होगा, दिस वुड बी वेट 21 एंड दिस वुड बी वेट 22. ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास दो एक्सप्रेशंस बन रही हैं. एक लाइन न्यूरॉन 1 की बनेगी और एक लाइन न्यूरॉन 2 की बनेगी. और अगर ऐसी सिचुएशन आए, दैट मीन्स कि मेरे पास अब एक लाइन की बजाय आई विल बी हैविंग टू लाइन्स. ठीक है, सो आई कैन एक्चुअली यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स कनेक्टेड टुगेदर टू सॉल्व either complex binary classification problems, or I can use them for multi-class, to solve multi-class problems. So multi-class problems को solve करने के लिए you will have to have multiple neurons
connected together. और जब multiple neurons are connected together, तो आपके पास अब आप ये देखेंगे इस न्यूरॉन की आपके पास एक इक्वेशन बनेगी y1, सो लेट्स कॉल इट, इसकी आउटपुट y1 है और इसकी आउटपुट y2 है। y1 की एक एक्सप्रेशन बनेगी और y2 की एक, अच्छा इसमें आपने थ्रेशोल्ड भी ऐड करना है, तो वी कैन ऐड अ थ्रेशोल्ड टू दिस न्यूरॉन एंड वी कैन ऐड अ थ्रेशोल्ड टू दिस न्यूरॉन, ताकि आपका वो थ्रेशोल्डिंग वाला मामला भी हो जाए। सो दिस वुड बी कॉल्ड w01 एंड दिस वुड बी w02, और यहाँ पे x नॉट will come in, which is a fixed value, x naught is equal to 1। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। दैट मीन्स कि 9, अगर आप इन कितने वेट्स हो गए, 4 और 2 6, अगर आप ये 6 वेट्स को ट्रेन करेंगे फॉर 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास यू कैन आइदर डील विद मोर, यू कैन आल्सो डील विद मोर देन वन क्लासेस इफ यू वांट। सो आपके पास दो इनपुट्स आ गए। अगर आपके पास फर्ज करें 3 क्लासेस हैं तो आप 3 न्यूरॉन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर 4 क्लासेस हैं तो 4 न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं। हर न्यूरॉन एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो यू कैन हैव अ मल्टी क्लास प्रॉब्लम व्हाइल कनेक्टिंग दीज न्यूरॉन्स टुगेदर, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो क्लास 1 means forwarding the signal and class 0 means not forwarding। yes, I mean you can interpret it in terms of biological working in this way, कि अगर तो आपकी आउटपुट आ रही है तो दैट मीन्स कि आप एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर आउटपुट नहीं आ रही तो आप दूसरी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली यू विल गेट सम इनपुट आउटपुट इन एनी केस, ठीक है। यानी एक केस में आउटपुट आपके पास नेगेटिव आ रही है और दूसरे केस में आउटपुट आपके पास पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव आ रही होगी तो वो एक क्लास होगी, जब नेगेटिव आउटपुट आ रही होगी तो वो दूसरी क्लास होगी, और जब जीरो आउटपुट आ रही होगी तो दैट मीन्स कि आप दोनों में से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी क्लास है। दैट वुड बी एनालॉगस टू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, ठीक है जी। ओके, सो लेट्स जस्ट सी कि अब इसमें लर्निंग कैसे होगी। सो लेट्स जस्ट एक्सटेंड आवर डिस्कशन टू द लर्निंग बिट। तो हाउ वुड यू डू द, हाउ वुड यू परफॉर्म लर्निंग हियर। लर्निंग मतलब वेट्स को लर्न कैसे करना है। वेरी क्विकली आई विल ट्राई टू कंप्लीट, आई मीन डिस्कस दिस, और फिर आई विल शेयर एन एग्जांपल जिसको आप यू विल गो थ्रू दैट एग्जांपल एंड यू विल फाइंड आउट कि ये किस तरीके से होता है। Can more than 2 inputs go into the same model as, yes of course। अब ये क्वेश्चन ये है कि माहा ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्या इनपुट्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास इनपुट्स जो हैं वो जितनी भी आप रखना चाहें। फर्ज करें एक न्यूरॉन के अंदर, फर्ज करें दिस इज वन न्यूरॉन दैट आई हैव गॉट, ठीक है। सो यू कैन हैव n inputs x2 and you can have n inputs that are coming into this neuron, और आपके पास एक न्यूरॉन की आउटपुट एक ही होगी, ठीक है। और inputs that are coming in, they could be n inputs that are coming in, and of course you'll have to put an x naught here ताकि आप फंक्शन थ्रेशोल्ड को भी इसके अंदर ऐड कर सकें। so it's not just restricted to 2 inputs। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 इनपुट्स लिए हैं, लेकिन n इनपुट्स तक आप ले सकते हैं, ठीक है। so n could be any number। each neuron, दैट इज ऑल्सो, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया कि पहली एग्जांपल में मैंने एक न्यूरॉन के साथ एग्जांपल दी थी ना, उसमें आपने सिर्फ एक न्यूरॉन की वैल्यू से ये आइडेंटिफाई किया कि अगर उस न्यूरॉन की वैल्यू जो आउटपुट आ रही है वो लेस देन 0 है तो वो एक क्लास है, ग्रेटर देन 0 है तो वो दूसरी क्लास है, ठीक है। तो अब इस केस में लेट्स से कि मेरे पास आई मीन एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक केस में मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रही हैं, फर्ज करें ये 3 आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इनपुट्स, ठीक है। सो दे आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है, दे आर ऑल कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड, और यहाँ पे मेरे पास एक y1 आ रही है, y2 आ रही है, y3 आ रही है। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, I'll say कि अगर y1 greater than 0 आ रही है तो this is class 1, अगर y2 greater than 0 आ रही है तो this is class 2, और अगर y3 greater than 0 आ रही है तो this is class 3, ठीक है। So I can actually model this कि अगर ये greater than 0 आ रही है और बाकी दोनों less than 0 हैं तो ये class 1 होगी,
अगर ये ग्रेटर देन 0 है और बाकी दोनों लेस देन 0 हैं तो ये क्लास 2 होगी, और अगर ये y3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और बाकी दोनों लेस देन 0 है तो ये क्लास 3 होगी। ठीक है, सो इस फॉर्म में मैं मल्टी क्लास प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, रिग्रेशन में और ये जो हमने डिस्कशन की है इसमें एक बेसिक फर्क है। रिग्रेशन इज फॉर प्रेडिक्टिंग वैल्यूज, रिग्रेशन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग कैटेगरीज और क्लासेस। हम यहाँ पे क्लासेस की बात कर रहे हैं, आई मीन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर दिस, हमने यहाँ पे ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि फॉर अ गिवन एक्स वैल्यू क्या है, हमने ये फॉर अ गिवन इनपुट वैल्यू क्या आ रही है वाई की, हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट क्लास कौन सी है, राइट। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिग्रेशन के अंदर और इसके अंदर। तो कैटेगरी अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आएगी, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हम इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने आप ये भी बताया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, नॉट अ प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, प्रेडिक्शन ऑफ अ वैल्यू। ठीक है, वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वी आर ओनली डिटर्मिनिंग, हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो एक क्लास है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो जो दूसरी क्लास है। y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वी आर नॉट रियली कंसर्न विद दैट, वो पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव है या कितनी नेगेटिव है, दैट टेल्स यू समथिंग, लेकिन primarily we are interested in sign. जी, so let me just answer some of the questions जो कि भी आए हैं। Right, so suppose previously our equation of neuron had only till W3 but now we have got 5 inputs. अच्छा, अगर आपके पास inputs change होंगी you will have to retrain your network. ठीक है, आपको weights दोबारा से determine करने पड़ेंगे। ठीक है, और weights दोबारा से determine करने का मतलब ये है कि आपको learning एल्गोरिदम दोबारा से रन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसी आपकी इनपुट्स चेंज होंगी तो यू कांट रियली यूज द सेम मॉडल, यू विल हैव टू रीट्रेन दैट मॉडल। दैट मींस कि आपके पास नए एग्जांपल्स आने चाहिए विद 5 इनपुट्स और उनको आप यूज करें टू ट्रेन द नेटवर्क। ट्रेनिंग ऑफ द नेटवर्क मींस डिटर्मिनिंग ऑफ दीज वेट्स, एंड we'll come to that point in a while कि वेट्स को आपने डिटर्मिन कैसे करना है। अच्छा, फॉर एवरी सेट ऑफ इनपुट विल वी हैव अ डिफरेंट रिग्रेशन लाइन, what if y1 and y2 greater than 0 but y3 less than 0। अच्छा हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एग्जांपल मैंने बताया कि आपके पास एक ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बाकी लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास 2 ग्रेटर देन 0 आ जाती हैं और एक लेस देन 0 आती है तो फिर क्या करेंगे। तो इन दैट केस आपके पास यू विल हैव अ टाई बिटवीन दोज टू क्लासेस जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो फॉर एग्जांपल y1 और y2 है, तो अगर ग्रेटर देन 0 y1 y2 दोनों के लिए आ रही है तो दैट मींस इट्स आइदर क्लास 1 और आइदर क्लास और क्लास 2। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इस सूरत में इफ यू, सो देयर इज अ कंफ्यूजन हियर इजंट इट, कि अब आपके पास ग्रेटर देन 0 की बात आ गई और लेस देन 0 की बात आ गई, तो हो सकता है दो क्लासेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, इस केस के अंदर द इजीएस्ट सोल्यूशन इज कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्ड थ्रेशोल्ड फंक्शन यू यूज द सॉफ्ट थ्रेशोल्ड फंक्शन। और सॉफ्ट थ्रेशोल्ड फंक्शन का मतलब ये है कि नाउ यू विल नॉट बी डीलिंग विद वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 0, यू विल बी डीलिंग विद अ स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम बिटवीन 0 एंड 1 आल्सो। आप सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करें, और सिग्मॉइड फंक्शन को यूज आप करेंगे तो उस सूरत में the magnitude of positivity would also be important। कि let's say कि एक केस में मेरे पास फंक्शन आउटपुट की वैल्यू, let's say मेरे पास एक केस में यहाँ पे let's say मेरे पास जो आउटपुट आती है वो 0.8 आ जाती है, यहाँ पे मेरे पास 0.6 आ जाती है और यहाँ पे मेरे पास 0.1 आ जाती है। So this would only happen if I have a continuous function, that means कि soft thresholding मैं करूँ तब मेरे पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी। इस केस में आई सी के सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किस क्लास की है। रिमेंबर, हार्ड थ्रेशोल्डिंग के अंदर आप इस तरह का काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स में जनरली स्पीकिंग हार्ड थ्रेशोल्डिंग आप नहीं यूज कर रहे होते क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेन।
वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो आप सिग्मॉइड फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शंस को जब आप यूज़ करेंगे तो उस सूरत में आपके पास वैल्यूज़ जो आउटपुट पे आएंगी ना, वो 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो 0.8 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आप ये प्रिडिक्ट करेंगे, आपकी आउटपुट अगर 0.8 आ रही है और दूसरी आउटपुट आपकी 0.6 आ रही है और तीसरी आउटपुट आपके पास 0.1 आ रही है, क्योंकि आपने सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया है, तो आपकी आउटपुट अब हमेशा 0 और 1 की रेंज में आएगी, ठीक है। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि विनर कौन है, तो विनर इज क्लास 1, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है 0.8, ठीक है। तो यू विल एक्चुअली बी saying in this case कि the output is belongs to class 1, ठीक है जी। Okay, so sigmoid function would make it same as regression, right? I mean again regression वाला जो point है ना, that is for predicting the values. Here I'm not we are not again interested in knowing कि y1 की exact value क्या है, we are only interested कि इसमें एक्साइटेशन किसमें सबसे ज़्यादा हो रही है। तो एक्साइटेशन जो है वो क्लास 1 विच इज़ y1 उसमें सबसे ज़्यादा हो रही है, द वैल्यू इज़ 0.8। तो अगेन इट वोंट बी एग्जैक्टली रिग्रेशन, इट्स डिफरेंट फ्रॉम रिग्रेशन। we'll see with the help of an example also कि रिग्रेशन में क्या होता है और इसमें क्या होता है, ठीक है। Okay, so anyway, I think we don't have enough time today to discuss the learning rule, लेकिन just the last thing before I leave this discussion is I'll just give you the learning rule ताकि आप उसको समझ लें, देख लें, and then in the next class we'll have a complete discussion on that. The change in weights, and that what we'll say that the change in weights is actually proportional to the error that is generated. So if the error is low, that means कि आप अच्छा predict कर रहे हैं दोनों classes को, तो आप कम से कम weights को change करेंगे। अगर आप अच्छा predict नहीं कर रहे तो आप weights को ज़्यादा drastically change करेंगे। So that is one thing. The change in weights that would happen is proportional to the error that is being generated. और किसको, let me just write it error. And what is this error? The error is primarily your actual output जो कि आनी चाहिए minus the predicted output. आपका मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपका मॉडल प्रेडिक्ट वही कर रहा है जो एक्चुअल है तो एरर कम होगा, और अगर आपका मॉडल वो प्रेडिक्ट कर रहा है जो एक्चुअल नहीं है तो एरर ज्यादा होगा। जब एरर ज्यादा होगा इसका मतलब आपको वेट्स को ड्रास्टिकली चेंज करना है, अदरवाइज आपको वेट्स को चेंज कम करने की जरूरत है, ठीक है। और इस सूरत में इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास इनपुट्स क्या आ रही हैं। सो दिस इज प्राइमरीली द रिलेशनशिप जिसको वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सप्रेशन in our next discussion. So change in weights will be related to the error. तो अब आपके पास एक्चुअल आउटपुट कहाँ से आएंगी, क्योंकि आपके पास नॉन एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आपके पास XY पेयर्स तो अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वहां से एक्चुअल आउटपुट देखेंगे और आप ये देखेंगे कि आपका मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, और मॉडल प्रेडिक्शन के लिए आपको पहले कुछ वेट्स चाहिए होंगे और उन वेट्स को आप इनिशियलाइज करें। Random initialization can be done. So initialization of weights could be done and that initialization could be random. आप randomly weights को initialize करें, error निकालें और error को देखते हुए weights को adjust करना शुरू कर दें, और weights को in direction में adjust करें, ऐसे adjust करें कि आपका error कम होना शुरू हो जाए, right? Till what value? अच्छा, till what value of error? अच्छा, this would be एरर आपने स्टॉप कब करना है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। तो स्टॉपिंग कंडीशन जो है दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डिटरमिन, और जनरली स्टॉपिंग कंडीशन आप ये कहते हैं कि इफ द एरर इज बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड तो आप उसको स्टॉप कर दें, एंड दैट थ्रेशोल्ड कुड बी सेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप एक हायर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, अदरवाइज अ लोअर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, 0.001, 0.1, वट एवर दैट थ्रेशोल्ड इज। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने, क्योंकि ये प्रोसेस को अब रिपीट करना है मैनी टाइम्स, आपने इनिशियलाइज किया, आपने एरर निकाला, वेट्स को चेंज किया, फिर आपने प्रेडिक्ट किया, फिर एरर निकाला, फिर वेट्स को चेंज किया, सो दिस वुड गो इन द फॉर्म ऑफ एन आइट्रेशन। सो कितनी आइट्रेशंस के लिए इस प्रोसेस को रन करना है, दैट कुड आल्सो डिटरमिन योर
स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप 100 आइट्रेशंस के लिए, 1000 आइट्रेशंस के लिए, 5000 आइट्रेशंस के लिए रन कर सकते हैं, या आप उस वक्त तक रन कर सकते हैं जब तक आपका एरर एक गिवन थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं आ जाता. Right. So anyway, the exact expression with the help with an example, we'll do it next time. Today we don't have the time. We have already run short of time.